Today's our topic is e-commerce strategy. As you know what is e-commerce, whenever you buy and sell something on the internet, you get involved in e-commerce. आज बहुत सी organizations, whether big or small e-commerce websites, they are making use of e-commerce strategy. They are making use of n number of digital business strategy. So first of all the business firms who are operating online store, they make sure of these two things. First thing is your website is accessible from every type of device, whether PC, laptop, phone, and the second thing is there should be clear design and a readable information in it. There are unlimited e-commerce strategies, like in future we'll be making use of augmented reality or virtual reality, artificial intelligence, chatbots. We may be using droids and drones for delivery of goods. So today we'll be seeing some of the common e-commerce strategies that most of the business websites use these days. These are some of the e-commerce strategy. First one is easy to understand and categorize. The most important thing for any website is that whenever the customer visit your website, they can easily find out the product either through search or through the filters. Do not make the things complex for your customer, either to find out the product or to find out the search button. Make the things simple for your customer. Keep always your search button on the top and center side of your website, which will help your customer to find the product. For example, if I visit fabmart.com or amazon.com, there I can search the product through category wise. आपको जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए आप डायरेक्टली प्रोडक्ट्स का नाम लिख सकते हो या आप कैटेगरी वाइज सर्च कर सकते हो. मैनेजमेंट बुक्स, और आप यहाँ से कैटेगरी वाइज भी सिलेक्शन कर सकते हो. सो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो या आप लोग अपनी जो थिंग्स है उसे फिल्टर कर सकते हो. जैसे कि फिल्टरिंग इज अ ग्रेट वे टू नैरो डाउन योर चॉइसेस एंड मेक अ परचेज डिसीजन. So with the help of filtering we can narrow down our search result. Like for example ये तो बुक है, अगर for example मुझे कोई टी शर्ट परचेज करना है तो first I'll be selecting a brand, after that I'll be selecting the size, after that I'll be selecting the color. तो इस तरीके से आप search results find out कर सकते हो. Today Amazon.com आज आपको एडवांस्ड सर्च फैसिलिटी की ऑप्शन देता है, एडवांस फिल्टरिंग की, जहां पर आप बहुत से ब्रांड्स को कलर वाइज प्राइस वाइज कंपेयर कर सकते हो. Second strategy is stunning photos, high quality pics. As it is said that one picture is worth than million words. When you are shopping online, so visitors can't touch or feel your products like in the real world. So provide them the large and high quality images. As online shopping is intangible and needs a lot of guesswork on the part of customers, so visualization is the best practice for any website to present their products to their customers. So today organizations are making use of animated images, 3D effects. Most of the websites today are giving the option of zoom option. And apart from them the website must provide the different views of the images. जैसे कि for example ये एक कार है, suppose anyone, अगर किसी को कोई एक कार परचेज करना है, so they must provide, the website must provide front view, inside view, left view, right side view. So it will help them to purchase, it will help them to make a purchase decision. Third strategy is unique product content. इन दी वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट इज द किंग. जितने आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन यूनिक होगा उतने ही आपके प्रोडक्ट्स का गूगल सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज में आने के ज्यादा चांसेस होंगे. टू विच वी सी एस SEO, ऑर्गेनिक सर्च, विच हेल्प्स अस इन कंपटीशन. टुडे एन नंबर ऑफ कंपनी रिक्रूट्स हंड्रेड्स ऑफ कंटेंट राइटर. आपका जो कंटेंट होना चाहिए वो शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए. आज बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस कंटेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में प्रोवाइड करती है, ग्राफिक्स के जरिए से प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशंस वीडियोस के जरिए से कंटेंट प्रोवाइड करती है. 78% जो इंटरनेट यूजर्स होते हैं वो प्रोडक्ट को परचेस करने से पहले आपका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं. इसी तरीके से बहुत से पर्सन्स आपके फोटोज देखते हैं कि प्रोडक्ट डिफरेंट व्यू से कितना अच्छा है, उसका लुक एंड फील कैसा है, इंटेंजिबल जो कि है. तो यहाँ पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा इमेज पे वर्कआउट करना है. इसके अलावा 85% ऑफ द यूज़र्स जो इंटरनेट यूज़र्स होते हैं वो प्रोडक्ट खरीदने से पहले वीडियो देखना प्रीफर करते हैं. सो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है हियर दे मस्ट फोकस ऑन द कस्टमर प्रॉब्लम. कस्टमर का किस चीज़ में इंटरेस्ट है एंड आपको अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट कॉन्टेंट प्रोवाइड करना है. Next strategy is
Good URLs. Make sure that your website address are easy to understand and navigate. Here you should focus on appropriate keyword. जैसे कि आपका जो URL है, URL is made up of protocol, domain, डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, सब डोमेन, इनके कॉम्बिनेशन से आपका URL बनता है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपका जो URL है उसमें कीवर्ड्स, अच्छे से अच्छे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को कार बेचना है तो जैसे कि नाम से ही कुछ वेबसाइट्स भी होती है cars.com। ऐसा नहीं है कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल करो आपका URL में उसका नाम होना चाहिए। आपका जो प्रोडक्ट जब भी कोई सर्च करे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आज मोबाइल सर्च करना है तो अगर मैं गूगल पे मोबाइल सर्च करता हूँ तो मुझे बता देता है amazon.com, और बहुत सारे मोबाइल की भी वेबसाइट्स होती है। तो इसमें जो कुछ पेड वेबसाइट्स होती है जो कुछ अमाउंट गूगल को पे करके गूगल के सर्च रिजल्ट में अपनी लिस्टिंग्स क्रिएट करती है, एंड कुछ फ्री में जो कि पॉपुलर होने के वजह से होती है। आपका जो URL है जिसमें डोमेन नेम होता है, जिसमें कीवर्ड्स होते हैं, तो वो इजी हो, ताकि अगर कोई किसी को आप कह दे, वो टफ नेम नहीं होना चाहिए, ताकि अगर कोई नाम भूल भी जाए तो अगर वो गूगल पे सर्च करे प्रोडक्ट तो आपका नाम सर्च रिजल्ट्स में आ जाए। तो आपका URL शॉर्ट भी होना चाहिए, ज़्यादा सब डोमेन्स भी नहीं होनी चाहिए, एंड ईजी होने चाहिए, जैसे कि amazon.com या अमेजन रिवर से बना है। इसी तरीके से आपको जैसे कि जो भी प्रोडक्ट्स आप सर्च करते हो ज़्यादातर अमेजन रिजल्ट आपको सर्च पेजेस में मिल जाते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्लॉगिंग। सो ब्लॉगिंग इज अ वे ऑफ ड्राइविंग रेलेवेंट एंड क्वालिफाइड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। बहुत सी वेबसाइट्स खुद के ब्लॉग बनाती है एंड वहाँ पर अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड वो कुछ इन्फॉर्मेशन पोस्ट करती रहती है। जो भी कस्टमर के क्वेरीज होती है, जो भी कस्टमर्स को प्रॉब्लम्स होती है, वहाँ पर वो उनको क्वेरीज को सॉल्व करते, कस्टमर को एजुकेट करते। तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने ब्लॉग में क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करे। अगर वेबसाइट पे क्वालिटी कंटेंट होगा तो वो आपकी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए काफ़ी होगा। एंड इसके अलावा आपका जो गूगल का जो सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज है वहाँ पर भी आपके ज़्यादा आने के चांसेस होंगे। बट यहाँ पर आप जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वो कंटेंट यूनिक होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई मोबाइल सेल करना है तो मैं सिर्फ नॉर्मल नहीं सेट करूँगा कि मुझे नोकिया मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, मुझे कुछ एट्रैक्टिव वर्ड इस्तेमाल करना है। जैसे कि आज हर कोई स्मार्टफोन, आईफोन इस्तेमाल करता है, मुझे कुछ समथिंग न्यू ट्राई करना होगा। भारत का फ़ोन, हिंदुस्तान का फ़ोन, चाइना का फ़ोन ना लिया जाए, भारत का फ़ोन लिया जाए। मुझे कुछ एट्रैक्टिव कैची कंटेंट लिखना होगा डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज इंसेंटिवाइज कस्टमर्स, इंस्टेंट डिस्काउंट। यहाँ पर आपको अपने कस्टमर्स को अच्छा एक हैंडसम डिस्काउंट देना है जिससे हमेशा वो आपसे इन टच रहे, आपसे लॉयल रहे, क्योंकि कस्टमर उन्हीं से खरीदना प्रीफर करती है जो एक बंडल्ड परचेज पे या एक स्पेशल थिंग्स पे आपको डिस्काउंट देना प्रीफर करती है। आज आप देखोगे amazon.com अब जो भी प्रोडक्ट सेल करता है आपको बताता है कि दिस प्रोडक्ट इज ऑफ 2000, ये हम आपको 951 में प्रोवाइड कर देते। तो कस्टमर उन्हीं से खरीदना प्रीफर करते हैं, या तो कुछ वो डिस्काउंट्स देते हैं या कुछ ऑफर्स देते हैं या कुछ फ्रीबीज या कुछ कूपन्स। तो ऐसी जगह पे कस्टमर ज़्यादा जाना प्रीफर करते हैं। Okay, next strategy is abandoned cart emails. In the world of e-commerce, many shopping carts are abandoned when customer fails to check out. जैसे कि for example amazon.com पे yesterday I have selected the product as a car. एक्चुअली मुझे परचेस नहीं करना है एंड आई एडेड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू द कार्ट। यहाँ पे आपको बता रहा हूँ 1 एंड इंस्टेड ऑफ चेकआउट, क्योंकि अगर मैं चेकआउट में जाता तो देयर आई नीड टू वेरीफाई, नॉट वेरीफाई, आई नीड टू कंफर्म दैट दिस इज माय करेक्ट पोस्टल एड्रेस एंड आफ्टर दैट आई नीड टू पे आइदर टू विच ओवर द मोड ऑफ पेमेंट। सो यहाँ पर अब ebay.com क्या करता है, यहाँ पे amazon.com, नाउ amazon.com will start sending me mails that something you have left in your cart, आप कुछ भूल गए हो, आप कंप्लीट कर लीजिए आपका वो ट्रांजैक्शन। तो इस तरीके, तो ये भी एक बहुत इफेक्टिव वे है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके से जब कस्टमर को मेल सेंड करती है तो भी उनके कुछ प्रोडक्ट सेल हो जाते। देयर कुड बी एन नंबर ऑफ रीज़न। हो सकता है मुझे परचेस करने में प्रोडक्ट इंटरेस्ट नहीं था, मुझे जस्ट सर्च करना था कि लाइक कौन कौन से प्रोडक्ट्स है। कुछ कस्टमर पावर फेलियर की वजह से अपना चेकआउट नहीं कर पाते हैं,
कुछ कस्टमर्स पेमेंट ऑप्शंस ना होने की वजह से, ऐसे तो अमेजन आपके लोकल करेंसी में भी डील करता है एंड बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। इवन अमेजन.com, कुर्ला जनता सरकारी बैंक पे भी अगर आपका अकाउंट है तो वो भी आपके लिए ऑप्शन बेस्ट है अमेजन.com पे परचेस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज टारगेटेड रीमार्केटिंग। Targeted remarketing is possible when the customer has actually visited your website and it has without purchasing has left your website। तो यहाँ पर अब organizations क्या करती है, यहाँ पर उनको contact करती है सोशल मीडिया के जरिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे टाई अप बिटवीन फेसबुक एंड अमेजन.com। आप जो भी एक्टिविटी फेसबुक पे करते हो, फेसबुक.com वो अमेजन.com के साथ में शेयर करता है एंड बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट आपके साथ में सर्टन प्रोडक्ट शेयर करता है। इसी तरीके से आप अमेजन.com पे कोई एक एक्टिविटी तो अमेजन.com क्या करता है, रिकॉर्ड करता है आपका, आपने सर्च किया था एसी, तो अमेजन.com को पता चल चुका है यू हैव ए इंटरेस्ट इन एसी। सो देखो ये जो google.com होता है जिसके जरिए से आपने अकाउंट क्रिएट किया, जिसे आपने फेसबुक क्रिएट किया, तो ये उनको एक आइडिया मिल जाता है कि आपका सोशल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंस है, वहाँ पे वो आपको प्रोमोशनल सेल्स के मैसेजेस सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज योर customer reviews। So not all the products can make a sale on their own। some positive customers, कुछ कस्टमर्स के पॉजिटिव रिव्यूज होते हैं दैट कुड इवन मेक अ बिग डिफरेंस। जैसे कि अगर देखा जाए तो बहुत से पर्सन्स 3D इमेजेस देखना प्रीफर करते हैं, उनको कंटेंट पढ़ के प्रोडक्ट परचेस करते हैं, आफ्टर सीइंग दी वीडियोस वो प्रोडक्ट परचेस करना प्रीफर करते हैं। बट 60% ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं जो प्रोडक्ट का रिव्यू देखते हैं। दिस इज ए प्रोडक्ट विच आई परचेस। ये वही माइक है जिसपे अब मैं लेक्चर ले रहा हूँ। तो ये मैंने बहुत से डिस्क्रिप्शंस देखा, प्रोडक्ट्स इमेजेस देखे, वीडियोस देखे, बट आफ्टर सीइंग द रिव्यू it was 4.20 or 4.30 something like this। so after seeing the review I have taken the final decision to purchase this Boya mic and even I was given a handsome discount। okay, next one is your clear call to action। you must use a short and clear call to action messages with your customer for making purchases। जैसे कि for example Here they have shown buy now। तो डायरेक्टली वो आपको एक ऑप्शन दे रहे कि आपको अगर प्रोडक्ट परचेस करना है, अगर आपको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है तो आप वो प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन बाय नाउ। तो यहाँ पर बहुत सी कंपनी कभी कभी आपको बताती कि वी हैव ओनली लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड इन्वेंट्री, 50% डिस्काउंट वुड बी गिवन इफ यू परचेस दिस बुक टुडे। सो इस तरीके के आपको कुछ अर्जेंसी मैसेजेस कस्टमर को डिस्प्ले करना है। तो आपका जो कॉल ऑफ एक्शन होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए एंड क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज शॉर्ट चेकआउट प्रोसेस। नेवर सेक्रीफाइस विथ योर कस्टमर्स सिक्योरिटी। आपको हमेशा अपने कस्टमर को एश्योर करना है कि वो जो भी डिटेल्स आपकी वेबसाइट पे इंसर्ट करते हैं वो सेफ है जब वो चेकआउट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जब एक प्रोडक्ट परचेस, आई हैव नॉट परचेस एनी प्रोडक्ट yesterday, मैंने जस्ट एक कार को ऐड टू कार्ट किया, उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन था चेकआउट। तो एक शॉर्ट प्रोसेस होना चाहिए, जैसे मैंने चेकआउट कर देता हूँ, मैं पे कर देता हूँ, मुझे एक साइन आउट का एक ऑप्शन मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे लॉन्ग एक प्रोसेस। उसके अलावा जब मैं चेकआउट करता हूँ, पेमेंट कर देता हूँ, तो मुझे एक मैसेज आ जाता है कि आपकी डिटेल सेफ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप जब भी मेल सेंड करते हो जीमेल के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, तो आपको हमेशा हर मेल के बाद आपको बताता है जब मैसेज हैज बीन सेफली सेंड। तो इस तरीके के एश्योरेंस हमको कस्टमर को दिलाना है कि जब भी आप परचेस करके आप जा रहे हो आपकी इंफॉर्मेशन हमारे सर्वर्स में सिक्योर्ड है। ओके, नेक्स्ट वन इज रिकमेंड प्रोडक्ट्स। सो योर वेबसाइट्स रिकमेंड यू सर्टन प्रोडक्ट्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जो परचेस किया है बेस्ड ऑन दैट आपको रेलेवेंट प्रोडक्ट्स, आपको अपग्रेड्स डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन यू परचेस अ लैपटॉप दे विल रिकमेंड यू दैट परचेस सॉफ्टवेयर ऑल्सो। व्हेन यू परचेस ब्लेजर दे विल रिकमेंड यू फॉर अ टाई। इफ यू परचेस शूज दे विल रिकमेंड यू फॉर सॉक्स। इसी तरीके से वेबसाइट्स क्या करती है, आपको रिकमेंड करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम रिकमेंडेड कि आप एक हेडफोन परचेस कर लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप, बेस्ट एग्जांपल
ई कॉमर्स नहीं है, बट ई कॉमर्स के पार्ट ही है यूट्यूब। जैसे यूट्यूब पे जिस तरीके के आप वीडियोस देखते हो, अगर मान लीजिए आपने कुछ एंटरटेनमेंट रिलेटेड कुछ एक वीडियो देख लिया, तो बाद में आपको उसी से रिलेटेड आपको वीडियो सजेस्ट करता है कि आप ये भी देखिए। ओके, सो हियर द वेबसाइट मस्ट एनालाइज द इंटरेस्ट। जो भी वेबसाइट होती है वो बहुत से थिंग होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दे मेक यूज ऑफ गूगल एनालिटिक्स कि कहाँ कहाँ से कस्टमर्स हमारे वेबसाइट पर है। बट इसके अलावा आप कौन कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट बता रहे हो, आपको उससे रिलेटेड आपको सर्च बताना है। जैसे कि वेबसाइट देख लेते कि हमारे वेबसाइट पे कस्टमर है, ओके ये मेल है तो ये क्या सर्च करता है, बेस्ड ऑन दैट आपको रिकमेंड किया जाएगा। अगर एक फीमेल है तो वो क्या परचेस करती है। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑफर सब्सक्रिप्शन। बहुत सी कंपनीज आपको सब्सक्रिप्शंस कहती है कि अगर आपको हमारे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है, सर्विसेज में इंटरेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आपने नाम सुना होगा याहू प्लेटिनम या नेटफ्लिक्स। आपको जितने भी पिक्चर चाहिए, Amazon.com क्या करता है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल होते हैं। आपको जो भी चाहिए आप एक मंथली सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे कर दीजिए, फिर आपको जितने भी मूवीज़ चाहिए आप पूरे मंथ में देख सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस होते हैं, कुछ फ्री सब्सक्रिप्शंस होते हैं अबाउट द कंपनीज इन्फॉर्मेशन, कुछ पेड सर्विसेज होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंट विथ डिलीवरी ऑफर्स। ऐसा देखा जाता है कि आउट ऑफ अगर 10 कस्टमर्स है तो 10 कस्टमर्स में कुछ 8 कस्टमर्स ऐसे होते हैं वो तभी खरीदना प्रीफर करते हैं जब उनको कुछ फ्री शिपिंग दिया जाए या उनको डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्री में दिया जाए। तो बहुत सारे कस्टमर्स इसलिए भी परचेस करते हैं। मोस्ट ऑफ दी, ऐसा नहीं कि अमेजन, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स है जो आपको फ्री शिपिंग प्रोवाइड करती है। जैसे कि अमेजोन से अगर आप परचेस करते हो तो 120 किलोमीटर्स के रेंज में आप परचेस करते हो, सो दे प्रोवाइड यू फ्री शिपिंग। आउटसाइड 120 किलोमीटर्स की बाउंड्री तो आपको पे करना होता है। इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रेटेजीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अमेजन के स्क्रीन पर ही देखे होंगे कि लैंग्वेज भी एक बहुत एक अच्छी चीज़ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप पोर्तुगीज लैंग्वेज या जो भी 8 लैंग्वेज का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से बहुत सी वेबसाइट अगर आपको लोकल या बहुत सारे लैंग्वेज आपको आइडिया नहीं है, चाइनीज़ वेबसाइट अपने एक्सेस की है, तो आपको यूके या यूएस इंग्लिश में चेक करना है। तो इस तरीके से आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहो आप उसको कर सकते हो। ओके, सो हम अपना टॉपिक कंक्लूड करते हैं। तो ये सम ई कॉमर्स के स्ट्रेटेजीज थे। इन फ्यूचर विल बी मेकिंग यूज ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑफलाइन भी एंड ऑनलाइन भी, जहां पर हमको एक बस ऐप इंस्टॉल करना होगा। आज भी अगर आप चाहो तो गूगल ऐप में आप देख सकते हो, नॉट इन गूगल ऐप, इन अमेजोन ऐप, सर्च बटन के बाजू में एक कैमरा होता है, वहाँ पे आपको रूम व्यू चेक करना था और आपको कोई प्रोडक्ट परचेस नहीं करना है। आप जस्ट प्रोडक्ट को सेलेक्ट कीजिए कि आपके रूम में या आपके टेबल पे या आपके लैपटॉप ये प्रोडक्ट कैसा लगने वाला है। तो परचेस करने से पहले आपको एक व्यू मिल जाता है कि इस वॉल में ये प्रोडक्ट कैसा लगता है, सामने के वॉल पे किस तरह से प्रोडक्ट है। तो हम बिफोर परचेस एक हमको विजुअलाइजेशन, एक इफेक्ट मिल जाता है कि ये प्रोडक्ट इस तरीके से मिलता है। इसी तरीके से हम चैट बोट्स वॉइस के जरिए से, कमांड के जरिए से हम परचेस कर सकेंगे। ये एब्रॉड कंट्रीज में हो रहा है। इंडिया में जो वॉइस के जरिए से हम बस लाइट वगैरह इसी को कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसके अलावा जो लाइट भी होनी चाहिए वो स्मार्ट होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा, बहुत सारे एन नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज होंगे जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा होगा तो